Good morning, dear students. As we have completed the previous chapter, Seeds and Seeds, hope you all have finished that work related to that chapter. So today we are starting a new chapter, chapter number 6, Every Drop Counts. So let's first think, what's the meaning of every drop counts? Every drop of what? Every drop of water, yes. Every drop of water is very essential for all the living organism on this planet, including us human beings and all the living creatures. Why? Because we can't think of our life without water. Water is that much essential for all of us. We use water for performing different activities in our daily life, like drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, watering plants, and so many. So, if water is that much important for us, so what is the responsibility of all of us? We have to conserve every drop of water. We should try to conserve every drop of water and do not let it to waste it, right? So this is a message which the writer wants to give to all of us, that every drop of water is very essential for us, right? And we should try to save it. Now basically in this chapter which we are going to study today, we are going to discuss about the lake of गदसीसर, राइट। एक लेक है गदसीसर जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में एक प्लेस है जैसलमेर। तो जो यहाँ पे राजा हुए थे 650 ईयर्स अगो, 650 साल पहले एक राजा हुए, ठीक है, गदसी नाम के। इन्होंने इस लेक का निर्माण कराया था। ही मेड दिस लेक। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस लेक. See, you can see this picture. This is the lake of Gadsisar, and you can see here King Gadsi of Jaisalmer built the lake 650 years ago with the help of the people. जो वहाँ के लोग थे, he tried to make the lake with the help of those people. Since King Gadsi built the lake, क्योंकि ये King Gadsi ने बनवाया था, तो उनके ही नाम पे इस लेक का नाम रख दिया गया गदसीसर। गदसी राजा का नाम, और सर कहते हैं राजस्थान की भाषा में सर मीन्स लेक. सो गदसीसर इज द लेक मेड बाय किंग गदसी. नाउ जस्ट वॉच वेयर इट्स गदसीसर, वेयर इट्स जैसलमेर इन द मैप ऑफ इंडिया. नाउ यू कैन जस्ट सी हियर राजस्थान, राइट, इन द पिक्चर. एंड राजस्थान में ऑरेंज कलर का आपको ये राजस्थान दिख रहा है, और इस पिक्चर में राजस्थान में प्लेस है जैसलमेर. तो यहाँ पे जो है इस लेक का निर्माण किया गया था. Now you can see here the women are just sitting on the desert land, on the sand, and they are with the containers. They are waiting for the water, right? So water scarcity is a major problem in Rajasthan. It gets very little rainfall. कभी कभी यहाँ पे साल में कुछ ही दिन बारिश होती है और कभी कभी वो भी नहीं होती. It's get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year. Sometimes not even that much. The rivers here do not have water all round the year, right? So water problem यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है. तो किंग गदसी ने यही सोचकर इस लेक का निर्माण कराया गया होगा कि जिससे लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो, right? Now see here, all round the lake there are ghats with step leading to the water. ये जो गदसीसर लेक है यहाँ पे घाट्स हैं चारों तरफ, और वो जो स्टेप्स हैं वो लीड कर रहे हैं वाटर को. डेकोरेटेड वरांडाज हैं, लार्ज हॉल्स हैं, रूम हैं, एंड मच मोर. नाउ हियर गदसीसर के पास लोग क्या करने आते थे? पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. चिल्ड्रन भी आते थे यहाँ. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट, right? The talab belonged to everyone, and everyone took care to keep it clean. Now the rainwater collected in this lake spread over miles. There were 9 interconnected lakes. इस तालाब को, इस लेक को इस तरह से बनाया गया था कि 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स जो हैं वो इस तरह से थे कि एक लेक में से पानी कुछ इस तरह से इसमें आता था कि एक
लेक से दूसरे लेक में और दूसरे से तीसरे में, इस तरह से 9 लेक्स में पानी पहुंच जाता था। कुछ इस तरह से इसका बनाया गया था कि एक लेक से जो दूसरा लेक है वो हाइट में थोड़ा सा नीचे रखा गया था। ये देखो आप, ठीक है, ये 9 लेक्स इस तरह से कनेक्टेड थे। दिस वे देयर वर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स एंड ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह से पानी की प्रॉब्लम जो है, दस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वॉज सॉल्व इन जैसलमेर, राजस्थान। टुडे गढ़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। आज के समय में गढ़सीसर नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। ठीक है, अब तो नई नई बिल्डिंग्स और कॉलोनीज आप जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगी। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक। अब पहले की तरह इन लेक्स में पानी स्टोर नहीं होता। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड। बेटा अब ये रेन वाटर जो वेस्ट होता है इसको कंजर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी टेक्निक को जानेंगे कि कैसे जो रेन वाटर ऊपर से आता है वो वेस्ट ना हो। तो उस टेक्निक का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है इस टेक्निक में? ये एक वाटर कंजर्वेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि बड़े बड़े लार्ज टैंक्स बनवाए जाते हैं और जो बारिश का पानी आता है वो उस टैंक में स्टोर होता है, फिर फ़िल्टर होता है और फ़िल्टर करके लोगों के पास तक पहुंच जाता है या फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वायर। कोई टैंक में कर सकते हैं, कोई और चीज़ में कर सकते हैं, रैदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, राइट। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे रेन वाटर आता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है, फिर पाइप्स के थ्रू आता है, फिर फ़िल्टर एक लगा हुआ होता है, इस फिल्टर में पानी पहुँचता है पाइप के थ्रू और फिर यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद एक और टैंक में पहुँचता है, वहाँ फिर से दोबारा फ़िल्टर होता है और लास्टली 4th पॉइंट में आप देख सकते हैं दिस वाटर इज़ देन सप्लाई टू हाउसेस फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, राइट। अब यहाँ पे कुछ कस्टम्स भी रिलेटेड हैं वाटर से। लोग आज भी बहुत सारे कस्टम्स हैं जो लोग मानते हैं जो वाटर से रिलेटेड है। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारा, स्टेपवेल एंड नॉलास। मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. आज भी लोग नदियों के पास जाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, ये हम देख सकते हैं. So today what you have to do, you have to read this chapter very carefully with the help of this video, right? Understand it and we will further discuss this the next day tomorrow, right? Okay.